Hello everyone, welcome to the channel Agriculum, and today we will study the fourth lecture of Fundamentals of Horticulture, and the topics that are covering in today's lecture is the plant propagation, methods and propagating structure. So let's start with the basic definition, that is propagation is a process by which new plants are grown from various sources including seeds, cuttings, bulb, leaf and other plants. सिंपली प्रोपोगेशन आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई भी न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, या तो उसकी सीड के थ्रू, या तो किसी की कटिंग के थ्रू, बल्ब के थ्रू, किसी लीफ पार्ट के थ्रू, और जो भी आपके प्लांट पार्ट्स होते हैं. सो जो प्रोपोगेशन है वो आपका एक एक्ट है कि जिसमें आप कोई नया प्लांट ग्रो करते हैं पेरेंट प्लांट से. सिंपली नाउ द टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन. The types of propagations are the sexual propagation and asexual propagation. There is a difference between the sexual and the asexual part. In the sexual propagation, the multiplication happens by seed. Vigorous plants like difficult to maintain that and long lifespan, more juvenile phase. Okay, and the examples that are covered in the sexual propagation is the papaya and mangosteen. Now, talking about the asexual propagation, the small plant that is easy to maintain simply, and they have the short lifespan. They multiply their plant other than seed like cuttings, buds, bulbs, leaf part and much more. So the examples in asexual propagations is the banana and the pineapple. Let's talk about the advantages of sexual and asexual propagation. Firstly, we talk about the sexual propagation. Sexual propagation has an advantage of genetic variation. Like वो easily adapt हो जाता है environmental pressures पे. New varieties इस पे developed होती हैं जो कि disease resistant होती हैं. Longer life होती है इनकी. Environmental resistant होते हैं और economic भी वो काफ़ी अच्छा results हमें देते हैं. एंड एडवांटेजेस की बात करें अगर एसेक्सुअल प्रोपोगेशन की, तो जेनेटिक स्टेबिलिटी है, लाइक स्पीड है, एफिशिएंसी है, मेंटेनेंस है, एक स्पेशल ग्रोथ होती है उनकी, और लार्ज प्लांट्स भी उसमें ग्रो करते हैं. लाइक वो उसमें एक तरीके से मान के चलो कि जैसे एग्जांपल ले लो रोज़ है. अब रोज़ का क्या है, हम सीड तो ला नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं उसकी कटिंग ही उस नेक्स्ट उसमें लगा देते हैं, तो वो भी अच्छी ग्रोथ कर जाती है. अब ए सेक्शन में भी कई तरीके की लाइक मेथड्स होते हैं कि जिसके थ्रू हम करते हैं, वो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. सो नाउ टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ asexual propagation, that is cutting, budding, layering and grafting part. So first talk about the cutting. Cutting is a method of asexual propagation in which the plant parts such as stem, root or leaf is cut from the parent plant and placed under the favorable condition to form the roots and shoots, and thus producing a new independent plant. That is, जो आपका एक मान के चलो कोई स्टेम है, कोई रूट है, कोई लीफ है, उसको कट कर दिया और उसी के फेवरेबल कंडीशन में हमें उसे सॉइल के अंदर डाल दिया, तो उस पर क्या होता है, रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं. जब वहाँ पर रूट्स बनना स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट तब ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा. सो द टाइप्स ऑफ कटिंग दैट वी हैव सीन टिल नाउ इज दैट द स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग के अंदर आपका हार्डवुड कटिंग होती है, जैसे रोज़ और एप्पल की होती है. सेमी हार्डवुड कटिंग में आपका मैंगो और जैक फ्रूट आता है. सॉफ्टवुड कटिंग में आपका कैरनेशन एंड डोरनेट आते हैं, और हर्बेशियस कटिंग में आपके जो भी सारे आपके ऑर्नामेंटल्स हैं वो सब आपके आते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट द बडिंग पार्ट. Budding is a method of grafting in which only the single bud is inserted between two nodes at a suitable height of stalk plant in such a way to cause an intimate contact of cambium tissues for proper union, and this is known as the bud grafting. Budding आपका वो मेथड होता है जैसे जिस एरिया में आपका बड निकल रही है, जैसे मान के चलो बडिंग में भी कई तरीके के टाइप्स होते हैं, बट एग्जाम्पल अगर हम रोज़ की बात करें तो रोज़ में क्या होता है आपका कि जो भी आपके मान के चलो छोटा सा लाइक
आपका बडिंग एरिया है, आप उसको कट करते हो और आप दूसरे का जो नॉर्मल सा आपका एक नॉर्मल स्टेम का जो पार्ट होता है आप उसको हटा के उसके जगह पे उसको फीड करते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका उस वाले प्लांट से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और आगे जाके फिर उसी स्टेम पे रोज़ आना स्टार्ट होता है। सो अगर हम बडिंग के मेथड्स देखें तो टी बडिंग और शील्ड बडिंग, फॉर एग्जांपल ऑरेंज। इन्वर्टेड टी बडिंग होती है आपका रोज़। पैच बडिंग होता है आपका बेर में, लाइक पैच के फॉर्मेशन में हम वो कर। रिंग बडिंग में हम पूरे रिंग बना के उसको वहाँ पर फिक्स करते हैं, एग्जांपल पीच। चिप बडिंग की बात करें तो ग्रेप्स में देखी जाती है। अब फॉर्केड जो बडिंग होती है आपकी वो आपकी मोस्टली मैंगो में देखी जाती है। सो ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग ये आपका आर्ट है जिसमें आप यूनाइटिंग और ज्वाइन करते हो आप two independent plants in such a manner that they unite together and develop into a single parent plant। आप दो का आप दो स्टेम्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है। एक जो अच्छी वैरायटी का है, दूसरा जो मतलब ग्रो नहीं कर पा रहा है ढंग से। तो जो पार्ट ऑफ ग्राफ्ट होता है, जो शूट बनना चाहता है उसको हम स्क्योन कहते हैं। और जो पार्ट जो रूट लाइक रूट की फॉर्मेशन करवाना चाह रहे हैं उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें क्या होता है, एप्पल देखा जाए तो एप्पल में क्या होता है, हम उसके स्टेम्स को जैसे स्कियोन स्टॉक, जैसे आप इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हम उसको स्कियोन पार्ट है जो उसको स्टॉक के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो जब स्कियोन का पार्ट आपका स्टॉक के अंदर जाता है तो उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। तो जब वो टाइटली बाइंड होगा तो उससे क्या होगा, आपका प्रोसेस ग्राफ्टिंग का स्टार्ट होगा। अब ग्राफ्टिंग देखी जाए तो ग्राफ्टिंग भी 5 तरीके की मोस्टली हमने पढ़ेंगे। अप्रोच ग्राफ्टिंग दैट इज़ इनार्चिंग, जो कि मैंगो गुआवा में देखी जाती है। स्टोन ग्राफ्टिंग आपकी मैंगो, विनर ग्राफ्टिंग भी आपकी मैंगो, वेज ग्राफ्टिंग आपकी वॉलनट में देखी जाती है, टंग ग्राफ्टिंग आपकी एप्पल में देखी जाती है। नाउ द लास्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट लेयरिंग। लेयरिंग आपका एक डेवलपमेंट होता है रूट्स में, किसी भी स्टेम के लिए जब वो अटैच किया जाता है प्रेजेंट प्लांट में। जो रूट स्टेम होती है, जो वो रीच मतलब एक तरीके से न्यू प्लांट बनने के लिए जब तैयार होती है अपनी ही रूट्स बना के, तो उसको हम लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग बेसिकली 4 तरीके की होती है। सिंपल और टंग लेयरिंग भी होती है, एयर लेयरिंग और ग्रूटी लेयरिंग होती है, कंपाउंड लेयरिंग होती है और माउंट लेयरिंग होती है। आपका जो सिंपल और टंग ग्राफ्टिंग होता है वो तो आपका नॉर्मल हो गया, बट जो एयर लेयरिंग और ग्रूटी लेयरिंग होती है वो आपका मोस्टली लीची में देखा जाता है। जैसे लीची में क्या होता है कि जो ब्रांचेस होती हैं तो हम उसका क्या करते हैं, पार्ट को पूरा टाइट कर देते हैं, पूरा वहाँ पर एक मॉस का यूज़ करके पूरा पॉलीथीन से टाइट करके, और उसको दोनों साइड से इस तरीके से टाइट कर दिया जाता है कि वो उसमें कुछ भी ऐसा मॉइस्चर ना बन पाए। और फिर वो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो रूट्स की फॉर्मेशन वहाँ पर ले लेता है। तो जब वो रूट्स की फॉर्मेशन लेता है हम उतना पार्ट कट करके नया प्लांट बना देते हैं, तो उससे भी प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। और कंपाउंड लेयरिंग तो मतलब एक तरीके से झुकाव वाली लेयरिंग होती है जो वो होती है। और जो माउंट लेयरिंग होती है वो आपके ऐसे जो माउंट शेप की सॉइल होती हैं, लाइक माउंट शेप की सॉइल को बना के फिर उसमें कनेक्ट करवाई जाती है। So that was all about for today's lecture. Like, subscribe, comment for any doubt and stay connected.